A very good morning to all. So in the last class we have studied the two internal body organ, brain and heart. Last class में हमने क्या पढ़ा था? Two internal body organs, brain और heart के function के बारे में पढ़ा था कि brain कहाँ situated होता है, heart कहाँ situated होता है, ये हमारी body में क्या function करते हैं, इसके बारे में हमने last class में पढ़ा था. So in today's class what we will do? In today's class we will learn the next internal body organ that is present in our body. So today we will learn about lungs. किसके बारे में आज हम पढ़ेंगे? lungs के बारे में पढ़ेंगे. lungs क्या है? हमारी बॉडी में एक इंटरनल बॉडी ऑर्गन है, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी के इनर साइड में प्रेजेंट होता है. सो दिस इज वाई दिस इज एन इंटरनल बॉडी ऑर्गन. सो लेट्स लर्न व्हाट लंग डू इन अवर बॉडी. सी, there are two lungs in human body. They are situated in the chest cavity. What it is written? It is written कि human body में कितने lungs होंगे? Human body में two lungs होते हैं. See, you can see in this picture there are two lungs in human body. In human body there are two lungs and it is present in the chest cavity. कहाँ present होता है ये chest cavity में present होता है. In human body there are two lungs. In human body there are two lungs and it is present in the chest cavity. Where it is present? It is present in the chest cavity. And what work it do? It helps in रेस्पिरेशन प्रोसेस. जो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन का फुल प्रोसेस होता है उसमें कौन हेल्प करता है? ये हेल्प करते हैं हमारे लंग्स. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ लंग्स. जो रेस्पिरेशन की फुल प्रोसेस होती है लिविंग थिंग्स में वो किसकी हेल्प से होती है? लंग्स की हेल्प से होती है. सो with the help of lungs only we breathe in oxygen and give out carbon dioxide. So lungs help us in the process of respiration. So let's revise again. In human body there are two lungs. How many lungs are present in human body? In human body two lungs are present. With the help of lungs only the process of respiration takes place in human body. Human body में जो respiration का process है वो किसकी help से होता है? lungs की help से हो पाता है. With the help of lungs only we breathe in oxygen and give out carbon dioxide. So lungs help in the process of respiration. So let's revise it again. What is lungs? Lungs is an internal body organ. It is present in the chest cavity. There are two lungs present in human body and where it is located? It is located in the chest cavity and lungs help us in the process of respiration. lungs किस में help करेंगे? lungs हमें help करते हैं respiration की process में. With the help of lungs only we breathe in oxygen and give out carbon dioxide. So the process of respiration takes place with the help of lungs. The next internal body organ that we will learn today is फुट पाइप. किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? फुट पाइप के पढ़ेंगे. क्या किसके बारे में? फुट पाइप के बारे में. सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड दिस इज द फुट पाइप. दिस इज फुट पाइप. इट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक. ये क्या करता है? हमारे माउथ को किससे कनेक्ट करता है? हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है. क्या करेगा ये? माउथ को किससे कनेक्ट करेगा? हमारे स्टमक से कनेक्ट करेगा. सो foot pipe connects mouth with the stomach. It helps in the passage of food from the mouth to the stomach. क्या काम करेगा foot pipe हमारी बॉडी में? The main work which foot pipe do is it helps in the passage of food from the mouth to the stomach. अब जो भी खाना हम खा रहे हैं उसका जो passage हो रहा है वो food pipe से कहाँ जाएगा? हमारे stomach में जाएगा. From mouth we eat food, so from mouth this food pipe takes that food to the stomach. So it connects the mouth to the stomach. It is a passage एक ऐसा passage है जिससे food जो है वो stomach में pass होता है. So food pipe connect the mouth to the food pipe connect mouth with the stomach. It help in the passage of food from the mouth to the stomach. See, this is how our food pipe. This is our food pipe. It connects to the mouth and it pass the food. Whatever food we eat, it pass that food to the stomach. So it is a connection or passage between the mouth and stomach. So whatever food we eat, it take that food to the stomach. So food pipe connect mouth to the stomach and it help in the passage of food from mouth to the stomach. The next organ that we will study is stomach. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टमक के बारे में पढ़ेंगे. अब स्टमक क्या काम करता है हमारी बॉडी में? सी, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. जो स्टमक होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर एक बैग की तरह होता है. सी, दिस इज द शेप ऑफ अवर स्टमक. ये किसका शेप है? ये शेप है हमारे स्टमक का. इसका शेप जो होता है एक बैग की तरह, जो एक बैग होता है उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है. हियर
फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये स्टमक में ही जो भी खाना हम खाते हैं इसको ब्रोक किया जाता है सिंपलर सब्सटेंस में। सिंपलर सब्सटेंस में एक पेस्ट की तरह इसको यहाँ पे फॉर्म किया जाता है। और जब ये जो प्रोसेस होती है जिसमें जो खाना होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक किया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। Digestion is a process where complex substances is broken down into simpler substance. This process is called digestion. ऐसी प्रोसेस जिसमें खाने के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन। और ये डाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है? हमारे स्टमक में होती है। सो अवर स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। हमारा जो स्टमक है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक बैग की तरह होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो फूड है, जो भी खाना हम जो माउथ से खा रहे हैं, थ्रू द फूड पाइप दिस फूड इज कम टू द स्टमक। ये स्टमक में आएगा और स्टमक में इसके साथ क्या होगा? स्टमक में जो फूड हमारा आ रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है, इसको ब्रोक किया जाता है सिंपलर सब्सटेंस में और फिर यहाँ पे प्रोसेस होती है डाइजेशन की। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल लर्न इज intestine. What is intestine? See, this is the picture of our intestine. This is our intestine. ये क्या है? जस्ट स्टमक के नीचे क्या है? ये हमारा intestine. So, stomach opens into a long tubular structure. अब जो स्टमक है वो ओपन कहाँ जाके होता है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। सो स्टमक जो है वो कहाँ ओपन्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूबुलर structure called intestine. It help in the complete digestion of food. अब फूड पाइप से क्या हुआ? खाना कहाँ आया? हमारे स्टमक में आया। स्टमक से वो क्या हुआ? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन हुए। अब ब्रोक डाउन होके वो खाना कहाँ जाएगा? हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा और इंटेस्टाइन में वो खाना पूरी कंप्लीटली प्रोसेस होगा। और जो कंप्लीट प्रोसेस होगा डाइजेशन का, इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड। सो दिस जो कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस होगी ये कहाँ पे होगी? हमारे इंटेस्टाइन में होगी। So the full process of this we can understand with the help of this diagram. See, we eat food with the mouth and from the mouth this food is bring to the stomach. हमने खाना खाया, खाना खाने से ये जो फूड पाइप है यहाँ से ये खाना कहाँ आएगा? हमारे स्टमक में आएगा। अब स्टमक में आके जो भी खाने के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो किस में चेंज होंगे? सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाएंगे। अब सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होने के बाद ये खाना कहाँ जाएगा? ये खाना हमारा, क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो ओपन कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में जाके ओपन हो जाता है। अब इंटेस्टाइन में ये खाना आएगा और यहाँ पे इसको फुल डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारे माउथ से स्टार्ट होगा। कंप्लीट प्रोसेस कहाँ पे होगा? ये इंटेस्टाइन में इसका कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो this full process is called digestion of food. What it is called? It is called digestion of food. So in the digestion of food pipe is important because from the food pipe it connect mouth to the stomach. ये food pipe ही क्या करता है? हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है। ये पैसेज की तरह काम करता है जहाँ से फूड कहाँ पहुँचता है? हमारे स्टमक में पहुँचता है। अब स्टमक में पहुँचेगा। स्टमक क्या है? स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो खाना फूड पाइप से आया हुआ है टू द पैसेज, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है फूड के वो किस में चेंज होंगे? सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो भी हैं फूड में वो किस में चेंज होंगे? सिंपलर सब्सटेंस में होंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। देन उसके बाद क्या होगा? जो स्टमक है वो कहाँ आके ओपन होता है? जो हमारा स्टमक है वो इंटेस्टाइन में आके ओपन होता है। जो इंटेस्टाइन होता है वो किस शेप का होता है? हमारा जो इंटेस्टाइन है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो पूरे खाने को डाइजेशन की प्रोसेस में, जो हमारे खाने के पूरे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है। जो पूरी प्रोसेस होती है इसको कंप्लीट करने में कौन हेल्प करेगा? इंटेस्टाइन हेल्प करता है। सो द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड एंड दिस इज द diagram of digestive system. So what we have learned today? Today we have learned about the lungs in our body. There are 2 lungs in our human body and it is situated in the chest cavity. Where it is situated? It is situated in the chest cavity. Our lungs help us in breathing. The process of respiration takes place with the help of lungs only. With the help of lungs, we breathe in oxygen and give out carbon dioxide. The next thing that we have learned is food pipe. Food pipe, it connects mouth with the stomach. It helps in the passage of food from the mouth to the stomach. ये हमारे माउथ से
को से स्टमक को कनेक्ट करता है और खाने का जो पैसेज होता है माउथ से स्टमक में उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है? स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो खाना हम खा रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रोक डाउन किसमें होते हैं? सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन होते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। देन जो हमारा स्टमक है वो कहाँ ओपन होता है? हमारा जो स्टमक है वो इंटेस्टाइन में ओपन होता है। अब जो इंटेस्टाइन है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होता है और डाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है वो कहाँ पे कंप्लीट होगी? इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगी। सो द फुल डाइजेशन प्रोसेस ऑफ फूड completes in intestine. So today we have learned about lungs, food pipe, stomach and intestine. In the next class we will learn the other internal body parts. So homework for today is that you have to learn one function of each. What our lungs do in our body, what food pipe helps in, and what stomach helps in.